A very good morning to all of you. Today we are going to study about the special semiconductor diodes. For this time, we have to study only three types of special diode, and these are photodiode, LED, light emitting diode, and the solar cell. So first we focus on the photodiode, why it is called photodiode, what is its symbolical, how to represent it symbolically, and how does it works, what are its advantages and uses. So first of all, there is a photodiode which is represented by this symbolic diagram, and this symbolic diagram represents one side which is connected with a positive plate, and this is your p material, p type, and this is your n side. So it is simply a pn junction. It is pn junction, and this arrow shows that radiation is coming. That means the diode is receiving some photons or the light energy. A special type of PN junction device that generate current when exposed to light. It is known as photodiode. So it is a PN junction device that converts your photonic energy, or simply called the solar energy. सोलर एनर्जी या फोटोन एनर्जी आप दोनों कंसीडर कर सकते हैं, and convert it into electric current. It is also known as photodetector or photosensor. It operates in reverse bias mode. This point to be make more clear कि this is a reverse biasing mode, means the positive term connected with the negative plate of the battery, and the negative term of n side of the diode is connected with the positive part of the battery. मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाऊंगा तो एनोड के साथ हम क्या करेंगे, स्मॉल जो आपका लेंथ वाला होता है बैटरी का, या कह सकते हैं बैटरी का जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है उससे कनेक्ट करेंगे, और जो आपका एन साइड है उसको पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करेंगे. देन इट बिकम्स इन रिवर्स बायस मोड and convert light energy into electrical energy. Now, it is fabricated with a transparent window. फोटोडायोड में एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है. इट्स एन ओपनिंग which allowed the lights to fall on the diode. Now, we focus on the working of the diode. अब हम डायोड की वर्किंग पे फोकस करेंगे कि फोटोडायोड किस हिसाब से वर्क करता है. So working is there. It is as per your NCERT. Look at this diagram. This is your PN junction. Symbolic diagram आपको पहले हम दिखा चुके हैं. This is called block diagram. So this side is P, this side is N, and P is connected with negative plate, N is connected through a microammeter and a load resistance to the positive plate. This side P connected with minus of the battery, and the N side connected with positive of the battery. So it's a reverse bias case. Now second thing is there कि यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक स्ट्रिप दिखाई गई है that represent this particular line is junction, and the space around these junction point in which there is a combination of electron and hole, this is called depletion region. इसको हम depletion region कहते हैं. और ये इनकमिंग वेव आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट द डायोड और द पीएन जंक्शन इज रिसीविंग सम काइंड ऑफ लाइट एनर्जी. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपनिंग हियर, ये लाइट एनर्जी को रिसीव करेगा, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. मतलब जो मूवमेंट आपका इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का होगा वो होता केवल इसीलिए क्योंकि आप सफिशिएंट अमाउंट की लाइट को इस पे इंसिडेंट करते हैं. और जैसे ये लाइट इंसिडेंट होती है फ्लो ऑफ करंट होगा. फ्लो ऑफ करंट होगा तो फ्लो ऑफ करंट आपका बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में होता है. जब हम रिवर्स बायस का केस पढ़ते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर ही आपका करंट कैरियर होता है. मेजोरिटी कैरियर तो आपके क्या बैटरी की प्लेट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. जैसे कि आपने देखा पिछली स्लाइड्स के अंदर कि रिवर्स बायसिंग जब होती है तो जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल हैं या होल्स होते हैं वो सब नेगेटिव प्लेट को भाग जाते हैं अपोजिट अट्रैक्शन के कारण,
और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं। बट स्टिल देयर इज सम माइनॉरिटी कैरियर, यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कैरियर तब भी बच जाते हैं जो आपके आगे की तरफ फ्लो करेंगे, और वो जो फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, इसीलिए आपका करंट का अमाउंट बहुत कम मेजर किया जा सकता है। करंट इज माइक्रो एम्पियर बिकॉज ऑफ जो करंट फ्लो होगा है वो माइनॉरिटी कैरियर से होगा है। सो यहाँ पे क्या है, जब एक फोटो डायोड को इल्यूमिनेट करते हैं, मींस इट इज लाइक इंसिडेंट लाइट इस पे हम डालते हैं with a light of photon with energy h mu greater than the energy band gap। इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो हम लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं वो बैंड गैप वैल्यू से ज्यादा की होनी चाहिए। मींस the light which is incidenting or illuminating to the photodiode surface must be greater than the band gap of the junction diode. Then the electron holes pair are generated due to absorption of photon। जैसे ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके कारण आपका एक करंट डेवलप होगा जिसको हम फोटो करंट यहाँ पे कहेंगे, और वो आपका माइक्रो एमीटर डिटेक्ट करेगा। इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। नाउ द डायोड इज, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। Symbols, circuit diagram, on which principle does it work, which mode of the biasing is used for the case of photodiode। Now this is about the information, क्या इसमें किस तरह से वर्किंग हो गई है। The diode is fabricated with the generation of electron hole pair takes place in or near the depletion region। जो कि कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का, वो या तो डिप्लेशन रीजन में होगा या उसके नियर बाय अबाउट होता है, मींस जो ब्लू रीजन है उसके आसपास ही होगा। नाउ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज सच दैट इलेक्ट्रॉन्स रीच इन एन साइड एंड होल्स रीच टू पी साइड। ठीक है, ये हमने आपको रिवर्स बायसिंग कंडीशन में पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके एन साइड की तरफ भाग जाते हैं और होल्स जो होते हैं पी साइड की तरफ चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन एन साइड एंड होल्स आर कनेक्टेड टू द पी साइड। इट गिव राइज ए पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज कनेक्टेड द करंट विल फ्लो थ्रू इट। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट मींस डिवाइस कितना करंट प्रोड्यूस करेगी, ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट आप डालोगे उतना ज्यादा फोटो करंट आपका प्रोड्यूस होगा, मींस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। Thus the photodiode can be used as a photo detector to detect the optical signals। This is your diagram for, कह सकते हैं कि आपका फोटो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स है ये, जो आपको बता रहा है। पहली बात तो फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस में काम कर रहा था, इसीलिए आपके जो ग्राफ बने हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में बने हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे आने के बाद इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ लेकिन करंट की वैल्यू और ज्यादा नहीं बढ़ सकती, लेकिन हर एक इंटेंसिटी के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। सपोज यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ी वैसे वैसे आपकी कर्व में करंट की वैल्यू बढ़ गई है। जब आपकी इंटेंसिटी I1 थी जो कि लेस है, करंट का अमाउंट लेस था। जब आपकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ी, करंट का अमाउंट फिर बढ़ गया, इंटेंसिटी को फिर बढ़ाया, करंट का अमाउंट फिर बढ़ गया। तो करंट और इंटेंसिटी रिलेट कर गई हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अ कांस्टेंट लाइन फॉर ए पर्टिकुलर इंटेंसिटी। The VI characteristics are very similar to which you studied in photoelectric effect. Now the next topic is LED, and this is light emitting diode. Now what is LED actually? Light emitting diode
it is a semiconductor device. Now again, it is a semiconductor device having some p-type material, n-type material joined together, and they finally emits a light. What difference we will find here? We will find that in case of photodiode, it receive energy, लाइट एनर्जी, फोटोन एनर्जी को वो रिसीव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप सिंबल्स को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लाइट की इनकमिंग नहीं है, लाइट की आउटगोइंग है। मींस द लाइट इज गोइंग टू बी रेडिएटेड आउट। लाइट जो है वो रेडिएट आउट हो गई है, बाहर की तरफ निकल रही है। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, इट इमिट्स द लाइट। जब यहाँ पे वोल्टेज दिया जाएगा या लाइट दिया जाएगा, तब जाकर के ये अपनी करंट को प्रोड्यूस करेगा। ये सिस्टम के अंदर एक करंट डेवलप करेगा जो कि मिली एम्पियर या एम्पियर में हो सकता है। ऑब्वियसली ये मिली एम्पियर में होता है। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। दिस पॉइंट इज मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अर्लियर photodiode works in reverse biasing mode, but the LED work in forward biasing mode. तो दोनों में अभी तक हम दो डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। पहला डिफरेंस कि वो इनपुट क्या लेता है और आउटपुट क्या लेता है। दूसरी चीज आपने देखा कि उसकी बाइसिंग रिवर्स होती है, इसकी बाइसिंग फॉरवर्ड होती है। अब सिंबल्स को भी देखिएगा, दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सिंबल्स में इनकमिंग वेव दिखा रहे थे हम फोटोडायोड में, यहाँ पे आउटगोइंग दिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? एलईडी आप सभी ने देखी है। एलईडी के बारे में कुछ और पॉइंट आपको दिए गए हैं। दिस एलईडी इज एक्चुअली encapsulated with a transparent cover so that the emitted light can be comes out. आप सभी को पता है जो मार्केट में एलईडी अवेलेबल होती है, आइदर इन रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, उन सभी को ग्लास के कैप्सूल में पैक किया जाता है। इसमें ग्लास की एक विंडो बनी, एक कैप्सूल बना होता है या एक कवर बना होता है, उसको इनकैप्सुलेटेड ट्रांसपेरेंट कवर कहते हैं, जिससे कि लाइट बाहर आ सके। When diode is forward bias, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम N to P। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं N रीजन से P रीजन के लिए और करंट का फ्लो होता है। ठीक है, ये आपके फॉरवर्ड बायसिंग में आपको समझाया गया है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब एनोड को प्लस प्लेट से और कैथोड को माइनस प्लेट से अटैच किया जाएगा। इन दैट केस the free electron from the n side jump to p side and होल्स इसके साथ कंबाइन करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बैकवर्ड जा रही है तो करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाती है, इसलिए इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सेंट फ्रॉम n to p where they are minority carrier and holes are sent from p to n on both sides of the junction boundary. Excess minority carrier are there and which recombine with the majority carrier near the junction and it will deplete the width of depletion region. Once this recombination is done, the energy released in the form of energy photons. अब जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ पे एनर्जी का रिलीजन होता है। लाइक एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयंस आपस में आके मिक्स होंगे तो इफेक्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो कंबाइन हो गए तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फोटोनिक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। द फोटोन विद एनर्जी इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप। या तो ये इक्वल अमाउंट की बैंड गैप की एनर्जी रिलीज करेंगे या उससे कम भी कर सकते हैं। सो देयर इज ए कर्व विच इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एलईडी। Now look at this. इंफ्रारेड के लिए, फॉर द केस ऑफ इंफ्रारेड, आपका जो कर्व है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। वोल्टेज वर्सेस मिली एम्पियर, वोल्टेज और मिली एम्पियर का कर्व अगर देखा जाए तो 1 वोल्ट से कम की सप्लाई पे भी आपका इंफ्रारेड जो डिवाइस होता है, जिसको हम IR सेंसर कह देते हैं, वो वर्क कर जाता है। जबकि हम रेड वाले कलर की बात करें, रेड कलर की जो लाइट्स होती हैं जो कि आपकी एलईडी में हर जगह पे लगी होती है रेड कलर की, वो आपकी ऑपरेट करती है मोर देन 1 वोल्ट पे।
अच्छा, IR सेंसर का मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ। जो आपके टीवी के रिमोट्स होते हैं, ठीक है, टीवी के जो रिमोट्स होते हैं उनमें ये IR सेंसर लगा होता है जो कि इंफ्रारेड सेंसर है। ये लाइट ऐसी लाइट भेजता है जो आपको विजिबल नहीं है, लेकिन ये टीवी को इजीली कैच कर सकती है। तो ये मिली एम्पियर्स में काम करता है। रेड जो लाइट है वो आपकी लेस 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज देने पे वर्क करना स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली अगर आपको ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करनी है, येलो लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो आपकी सप्लाई जो होनी चाहिए वो 2 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप सेल यूज कर रहे हैं, सपोज आपने यूज किया पेंसिल सेल या बटन सेल आपने यूज किया, तो उससे आप एलईडी रेड वाली जला सकते हैं, लेकिन ग्रीन ब्लू ये नहीं जलेंगी। क्यों नहीं जलेंगी? क्योंकि इनको हाई वोल्टेज चाहिए होती है, ज्यादा हाई नहीं, बट 1.5 से ज्यादा चाहिए होता है। इसीलिए हमारे पास अलग अलग एलईडी के लिए अलग अलग सप्लाई का अमाउंट चाहिए होता है, वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर एलईडी। Now what happening in LED when we apply a forward current of the diode is small? क्योंकि जब हम फॉरवर्ड करंट अप्लाई करते हैं तो इसमें स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट डेवलप होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। जो लाइट इमिट हो गई है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी एंड बिकम मैक्सिमम। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। फॉरवर्ड करंट जब छोटा सा था तो इंटेंसिटी कम था, जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब इसके लिए आप फॉरवर्ड बाइसिंग का कर्व को ध्यान कीजिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जब कर्व बनाया था, स्टार्टिंग में वो बहुत क्लोज था जीरो लाइन के। उसके बाद सडनली वो क्या करता है, एक टर्न लेता है, टर्न लेने के बाद वो काफी हद तक स्ट्रेट जाता है। तो वो सब कुछ जो है वो यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि जब फॉरवर्ड करंट स्मॉल है, इंटेंसिटी स्मॉल है। जब फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। उसके बाद ये मैक्सिमाइज नहीं हो सकती, स्टॉप हो जाएगा ये। Now, LED are biased such that light emitting efficiency is maximum. LED को इस तरह से बाइसिंग की जाती है कि वहां से मैक्सिमम एफिशिएंसी की लाइट इमिट हो सके। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ LED इज वेरी लो। अगर इसको रिवर्स टर्मिनल पे लगा दिया जाए तो इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है बहुत कम होती है, टिपिकली अराउंड 5 वोल्ट। ठीक है। LEDs ऑफ वेरियस कलर, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कलर्स की। LED of various color include white are available in commercially and they are of different color based on the compound or the PN material which is used to fabricate। कि आपने कौन सा P मटेरियल और कौन सा N मटेरियल एक साथ फैब्रिकेट किया है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। The semiconductor used for the fabrication of visible LEDs must at least have a band gap of 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कोई भी ऐसी एलईडी जिसके कलर को आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है उसका बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। मस्ट हैव एटलीस्ट, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आप कह सकते हैं, उनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड फास्फाइड इज यूज फॉर मेकिंग एलईडी ऑफ डिफरेंट कलर। एलईडी फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हाउसहोल्ड लाइटिंग, जैसे आपका इंडिकेटर होता है, आपका वोल्टेज रेगुलेटर होता है, स्टेबलाइजर होता है, आपकी इलेक्ट्रिक केटली होती है उसमें भी लगा हो सकता है, आपके जो एडेप्टर्स होते हैं उसमें भी एलईडी लगी होती है, सब जगह पे आप एलईडी देखते हैं। इवन रिमोट कंट्रोल में एलईडी है जिसको हमने आईआर बोला है। रेगुलर अलार्म जो सिस्टम होता है उसमें एलईडी होती है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एलईडी का यूज करते हैं। एलईडी हैव फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल इनकैंसिडेंट लो पावर लैम्प। एलईडी के फायदे क्या हैं? एलईडी और सीएफएल दो आपके एक सोर्स है जिनसे आपको लाइट मिल गई है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एलईडी हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पेन,
एवरेज एलईडी लास्ट्स फॉर अबाउट 50,000 ऑपरेटिंग आवर, करीब 50,000 घंटे तक वो जल सकती है, और 50,000 से लेकर के करीब 1 लाख तक घंटे तक वो जल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर। एलईडी आर कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट 70% ऑफ देयर एनर्जी इनटू लाइट। एलईडी क्या करती है, जितनी भी उसको तुम एनर्जी दोगे इसका 70% क्या कर देती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए आजकल मार्केट में सीएफएल बल्ब को रिप्लेस करने के लिए एलईडी बल्ब आए हैं। दिस मेक देम मच मोर इफिशियंट देन द बल्ब which waste a lot of energy and turning it into heat। जो आपके पहले आते थे 100 वॉट के बल्ब जिसमें टंगस्टन का वायर लगा होता था, उसको रिप्लेस करने के लिए पहले इनकैंसिडेंट लैंप आए थे जिसमें सीएफएल का एग्जांपल दिया जाता था, लेकिन उसको भी रिप्लेस करने के लिए एलईडी बल्ब आ चुके हैं मार्केट में, जिनकी कंजम्पशन पावर बहुत कम है, बहुत कम करंट लेते हैं, ज्यादा आपको आउटपुट दे देते हैं। इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है। तो एलईडी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे हैं। एलईडी रिक्वायर्स लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, लेस वोल्टेज पे भी काम कर जाती है, अच्छी आपको मतलब आउटपुट देता है। दे डू नॉट नीड टाइम टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, बहुत फास्ट काम करते हैं ये, इन्हें टाइम नहीं लगता स्विच ऑन होने में, स्विच ऑफ होने में। दे ऑलमोस्ट प्रोवाइड मोनोक्रोमेटिक लाइट। LEDs are capable for emitting an extensively high level of brightness. This is one thing. Now, I go to the next point and the last point, solar cell. आप सभी को पता है सोलर सेल होती क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप लोग घरों के अंदर सोलर पैनल देखते हैं। इन असम एरिया, जो कि हमको पता है, यहाँ पे मैक्सिमम जगहों पे सोलर पैनल का यूज किया जाता है एज ए स्ट्रीट लाइट, और आप देख सकते हैं बहुत जगहों पे यूज किया जाता है। जनरेटर मतलब आपके जो इन्वर्टर है वो भी सोलर बेस्ड बना दिए गए हैं अब तो उन सब में क्या होता है, सोलर पैनल का यूज करते हैं जिसकी सिंगल यूनिट को सोलर सेल कहते हैं। तो सोलर सेल एक्चुअली क्या है, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है which operates which generate EMF when solar radiation falls on PN junction। ये तब काम करती है जब सोलर रेडिएशन इस पे इंसिडेंट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सोलर रेडिएशन इंसिडेंट कर गए पीएन जंक्शन पे, तब जाके ये क्या कर रही है आपके लिए, वोल्टेज क्रिएट कर रही है या करंट क्रिएट कर रही है। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक इफेक्ट as photodiode, but the term changes their biasing. In case of photodiode, reverse biasing, but in case of solar diode, it is solar diode or solar cell, it is forward biasing। वहां रिवर्स बाइसिंग था फोटोडायोड में, यहाँ पे क्या है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। प्लस को पॉजिटिव मतलब पी टाइप को प्लस प्लेट से और एन टाइप को माइनस प्लेट से जोड़ना है। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। ठीक है, and the junction area is kept much larger for the solar radiation। यहाँ पे जो एरिया है जंक्शन का, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा ओपन किया जाता है ताकि उस पर मैक्सिमम लाइट को रिसीव किया जा सके। मच लार्जर फॉर सोलर रेडिएशन, एरिया ऑफ द जंक्शन मस्ट बी लार्जर so that maximum light can be incident on that particular area and produce more power। Solar cells are used to power electronic devices and satellite and the space vehicle, and also as power supply for some calculators। इवन आजकल तो वॉचेस के अंदर भी सोलर सेल आ गया है। सोलर सेल का सिंबल अगर आप देखना चाहें तो इट इज जस्ट लाइक अ बैटरी सिस्टम। जैसे बैटरी में सिंबल होता है प्लस माइनस, वही है, लेकिन ये एक कवर में पैक है, इसीलिए इसके चारों तरफ एक सर्कल बनाया गया है, इनकैप्सुलेटेड है ये भी। एंड क्योंकि यहाँ पे लाइट आ सकती है विंडो से और फोटो डायोड पे पड़ सकती है, इसीलिए यहाँ पे इनकमिंग लाइट दिखाई गई है। तो सोलर सेल के लिए आपको एक बिग लाइन, एक स्मॉल लाइन वर्टिकल बनानी है एंड उसको एक सर्कल में इनकैप्सुलेट करना है एंड कमिंग वेव दिखानी है। दिस बिकम द सिंबल ऑफ सोलर सेल। एज पी टाइप सिलिकॉन वेफर, पी टाइप सिलिकॉन वेफर, प्योर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं जो कि पी टाइप का होता है। इस वेफर ऑफ अबाउट 300 माइक्रोमीटर इज टेकन ओवर ए थिन 0.3 micrometer of and silicon is grown on one end of diffusion process। यहाँ पे एक्चुअली क्या है,
एक पी टाइप का वेफर एक एन टाइप के वेफर के साथ कंबाइन किया जा रहा है। ऑब्वियसली पी टाइप सिलिकॉन लिया, एन टाइप सिलिकॉन लिया, उनको आपस में जोड़ दिया गया, पीएन जंक्शन ही बनेगा ये भी। जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है वो भी यहाँ पीएन जंक्शन है, लेकिन यहाँ पे दोनों की थिकनेस आपको दी गई है, जिसको आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। द अदर साइड ऑफ पी सिलिकॉन इज कोटेड विद ए मेटल प्लेट। अब पी साइड के ऊपर जो आपने जो भी आप एज्यूम कर गए, एक ब्रेड आपने बनानी है एक्चुअली, ब्रेड का लोअर सरफेस एन टाइप है, अपर सरफेस पी टाइप है, दोनों ही सिलिकॉन वेफर है, एक पी एक एन। अब हमको क्या करना है, जो भी हमने पी साइड लिया है उसके ऊपर हम एक मेटल की प्लेट लगाएंगे, मेटल का बैक साइड लगा देंगे विद ए मेटल बैक कॉन्टैक्ट ऑन द टॉप ऑफ एन सिलिकॉन लेयर, metal finger electrode or simply called metallic grid is deposited and this act as a front contact। अब इसमें है क्या, इसकी आपको एक्चुअली पिक्चर देख के पता चलेगा, तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। दिस इज योर पिक्चर, दिस इज योर बेस विच इज कॉल्ड मेटेलिक बेस कॉन्टैक्ट, दिस इज पी टाइप वेफर सिलिकॉन वेफर, और उसके ऊपर एन टाइप सिलिकॉन वेफर लगाया गया है, और उसके ऊपर आपकी मेटलाइज फिंगर इलेक्ट्रोड लगाई गई है, जो कि आपको ब्लैक ब्लैक सी लाइन दिखाई देती है सोलर पैनल के ऊपर, वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट की गई है। और इस पूरे चीज को ग्लास की प्लेट से कोट किया जाता है, ग्लास की प्लेट से कवर कर दिया जाता है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है सोलर सिस्टम का, सॉरी सोलर सेल का, नॉट सिस्टम, इट इज सोलर सेल। एंड दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, दिस इज डिप्लेशन रीजन, एंड डिप्लेशन रीजन नीड्स टू बी वाइड, ये हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ा चाहिए ताकि मैक्सिमम लाइट को रिसीव कर सके। Now this P end is connected with positive and N is connected with negative। ये आपका फॉरवर्ड वाइजिंग में होता है, और क्योंकि ये करंट को डेवलप कर रहा है तो यहाँ पे आप माइक्रो एमीटर मिली एमीटर लगा सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछ सकता है, सिंबॉलिक डायग्राम पूछ सकता है, किस प्रिंसिपल पे बेस है, फोटोवोल्टिक प्रिंसिपल है आपका। एंड अब हम आगे चलते हैं कि इसका बारे में कुछ कर्व्स को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। यहाँ पे when the light falls on it due to the following three basic process होता है। यहाँ पे सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा, रिकॉम्बिनेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट, इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस, जो कि आपकी सोलर लाइट है। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपने बाहर से इसको बाइसिंग किया है, बाहर से इसको बैटरी दिया है, तो इलेक्ट्रॉन होल को दोबारा सेपरेट किया जाता है, और जिससे यहाँ पे डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ जाती है। नाउ द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एन साइड्स आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट। जो फ्रंट कॉन्टैक्ट है जो कि एन साइड है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन कॉन्टैक्ट कलेक्ट करेगा, और पी साइड आपके होल कलेक्ट करेगा, एंड दिस कंबाइन विल फॉर्म्स मतलब दिस कॉम्बिनेशन विल क्रिएट द amount of current in the external circuit। Now this is the VI graph and it is important part। VI ग्राफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिए ग्राफ कैसा बना है यहाँ पे, दिस इज ग्राफ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ को, when external load is connected the photo current flows through the load। जब एक्सटर्नल आप लोड लगाएंगे, कोई रेजिस्टेंस लगाएंगे सर्किट के अंदर, फोटो करंट उससे फ्लो करेगा। ए टिपिकल आईवी ग्राफ जो है सोलर सेल का वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आपको केस में दिया गया है कि सेमीकंडक्टर विद ए बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जो सोलर सेल है उसका बैंड गैप है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप वाला अगर हम लाइट इस पे इंसिडेंट करेंगे तो ये वर्क करेगा, एंड इट इज आइडियल मटेरियल फॉर द सोलर सेल फैब्रिकेशन। अब हम सबको पता है सोलर सेल जो होता है उसकी आउटपुट जो होती है 0.5 वोल्ट तक हो सकती है, 0.1 0.2 0.5 वोल्ट तक हो सकती है। 1 वोल्ट की सप्लाई वो आपको नहीं दे सकता आउटपुट, अगर सिंगल सेल होगा तो। जब उन्हीं सेल को कंबाइन करेंगे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं।
दिस इज अबाउट द सर्किट। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट जब किया जाता है तो आपके पास वोल्टेज होती है, करंट नहीं होता है। और जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके पास IC दिखा रखा है, करंट ऑफ द शॉर्ट सर्किट आपको दिखा रखा है, तो उस टाइम आपकी वोल्टेज जीरो हो जाएगी। ये एक बेसिक फंडा है यहाँ पे। The important criteria for the selection of the material for the solar cell fabrication is band gap. Band gap should be between 1 to 1.8 electron volt. High optical absorption होना चाहिए, ये ध्यान रखना। This point can be asked. High optical absorption, good electrical conductivity, availability of the raw material, and the last, cost. Sunlight is not required always for the solar cell. Any light having an energy more than the band gap can be used for creating the current. With this, I am stopping for the today and hope कि आप लोग इस चीज से सेटिस्फाइड होंगे। आपको 3 टाइप की स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। Suppose it will help for you in examination. Now, thank you.